the movie shows the pain comes from there. When we were segregated, it's a matter of chance. Scotland is a very rare, already Hindu population is so less in Edinburgh. So then there is the Gujaratis will have their community, there will be Marathi, there will be everything. This is what I wanted to tell the rest of the India. There was no Kashmiri, and when so we fell apart. We are still. I'm a lonely person here. Despite going to Mandir and all this, again, no disrespect to anything. The pain and the roots are coming from there, because when we were thrown out of our homeland, then there was no homeland ever. Yeah. Then there was no homeland. I didn't know. I read a lot of books and stuff. Vivekji, you have gone through so much of the Kashmiri culture. I respect that. I didn't know any human being could do that and do that kind of research. So respect to your research. Thank you. मैं इमोशनल नहीं होती हूँ because I never cried for empathy. I don't think anyone I have ever told in my job or anyone in my hospital doesn't know that I'm a Kashmiri. So we never ask for any sympathy. We just try to be tough and like face life, okay. But उस मूवी को देखने बाद दो चीजें थी. एक तो मैं आपको हक करना चाहती थी. नॉट क्या भाई अभी कर ले. इतने अच्छा हाँ बिल्कुल उनको डबल आपसे ज्यादा डबल रेस्पेक्ट है मुझे. Grateful, thank you very much, wonderful film. I am by profession a forensic physician, and I see people victims of torture and deathing. So I want to know what's being done now that you've exposed. Are people getting anything? Are we doing anything like the Holocaust? They did. They have made all the documents about it. Is there some help available? One is the PTSD, but there's so many things needing for these people, and we have to recognize this is a genocide. There's no two ways about it. Is there anything available in India? Or could there's a Victims of Torture Foundation in London? Maybe they could help. I'm just asking. This is an incident which happened 30 years ago. Yeah. And in the last 30 years, the primary thing for these people was to survive. Yeah. To get educated. So PTSD sounded like a rich man's problem, you know. Everybody had PTSD and nobody acknowledged it. In fact, the Kashmiri Pandit community themselves did not acknowledge the fact that they were suffering from PTSD. It was only later when, they grew up into their profession and they became medical doctors, and a lot of them became clinical psychologists and psychiatrists. That was the time that they realized how much their community has suffered in the last few years. And a lot of Kashmiri Pandit activists have then, tried to help their community and tried to spread the word within the medical circles also. So help did come their way, but at a very later stage. I think, although I haven't studied psychology, but I deal with emotions every day because of my profession, I think the damage was already done to a great extent by the time they received help. But it's never too late. If you can do something here, and if there are any Kashmiri Pandits here, if they can be healed with your intervention, that would be wonderful. Thank you. Thank you. Namaskar everyone. First of all, Vivekji and Pallavi, thank you so much for taking the courage. In fact, I feel slightly embarrassing saying this. जब आप जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में आए थे, my in-laws' house is close to there. The way the behavior was shown over there. First of all, I want to humbly apologize on behalf of all Bengalis for that one. And the second thing, sir, in fact, one of the things how to say this, last few decades, it's been almost like a given. एक हिंदू को दिखाया जाता है डरपोक, सहमा हुआ, अगरबत्तियाँ जला रहा है, बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में दिखाया गया, अगरबत्ती जला रहा है, और या तो दिखाया जाता है एकदम ऑपरेसर है, ठाकुर टाइप का है, इसका लैंड ले लेता है, गलत काम कर रहा है। इस नैरेटिव के खिलाफ ये जो दिमाग में इनग्रेन बैठाया गया कि मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला, सुपर हिट फिल्म है, इस नैरेटिव के खिलाफ आप लोगों ने कैसे फाइट की? दैट देयर इज नो शेम इन बीइंग अ हिंदू,
हम आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप हमें डिसरिस्पेक्ट मत करिए। ये जो इकोसिस्टम के अगेंस्ट में जो आपने स्विमिंग करके, ये हिम्मत कहाँ से आया सर फॉर टू डिफीट 50 years of ecosystem and post your success? Has anything changed in Bollywood or is it still back to status quo? That's my question, sir. देखिए, बॉलीवुड के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं, मेरा बॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कहाँ से आया, उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो मैंने बॉलीवुड से रिज़ाइन कर दिया, तो सबसे पहले मुक्ति मिल गई। तो जब मुक्ति मिल जाती है तो विचार भी अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, when my mother died, my father and mother and my sister, all of them died at a very short interval, तीनों एक साथ। तो फिर मैं अकेला सर्वाइविंग अपने घर में रह गया। तो तब मुझे ये लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाऊंगा, और है कौन इस दुनिया में मेरा। एक माँ का आगोश होता है ना। आप दुनिया में हर रिलेशनशिप में 1% चांस होता है कि अनकंडीशनल ना भी हो, पर एक आप रात को 3 बजे भी चले जाएं, आप बैंकरप्ट भी हो जाएं, आपके पास पैसा भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, पर माँ के आगोश में, माँ के कंधे में, माँ की साड़ी पकड़ के आप 2 आंसू बहा सकते हैं। और वो इसी बात का एक बैक में कॉन्फिडेंस होता है, जिससे आदमी जिंदगी चलता रहता है। एक बैक में एक कॉन्फिडेंस होता है। माई फादर ऑलवेज यूज टू से, हम उनसे कहते थे कि भाई, वो भोपाल में रहते थे, बिकेम 95, और उनकी हिप बोन टूट गई थी, तो वो बिस्तर पे ही थे। तो हम हमेशा कहते थे बम्बई आ जाइए। तो कहते थे देखो, एक घर तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जहां तुम बिना फोन किए किसी भी वक्त किसी भी हालत में आ सको। तुम दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम भी अगर कर दो, एक घर ऐसा होना चाहिए जहां तुमसे कोई सवाल ना पूछे और तुमको अनकंडीशनली डिफेंड करे। तो जब वो मेरा कनेक्शन खत्म हो गया, सडनली आई फेल्ट वेरी अलोन एंड लोनली, एंड आई सेड, मैं आफ्टर ऑल पर्पस क्या है जिंदगी का। और तब मैंने बहुत भारत में घूमा, शहर गांव, छोटे शहरों में, बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ मेरा संपर्क हुआ। मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, और आज भी हम वैसे ही रहते हैं। इस पे मत जाइएगा, ये ठंड के लिए पहन। तो मैंने देखा है, मेरी किताब अर्बन एक्सेल्स भी इसी के ऊपर है पूरी। लोग सोचते हैं पॉलिटिकल बुक है, पर है इसी विषय पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरी अगली बुक जो है हुकिल शास्त्री, वो भी इसी के ऊपर। भारत की जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो किस लेवल पे सैक्रिफाइस करती हैं। एक घर होगा, एक पिताजी होंगे, 4-5 बच्चे होंगे, पत्नी होगी जो काम नहीं करती है, आपके कजिन भी आ गए, मौसी का बच्चा शहर आ गया, उसको भी पढ़ाते हैं घर में रख के, छोटे भाई का बच्चा आ गया, उसको भी पढ़ा देते हैं, किसी दोस्त का बेटा आ गया 1-2 महीने, वो भी रह के चला जाता है। एक आदमी काम करता रहता है। एक माँ है जो पूरी जिंदगी ना तो वो मेकअप करती है, ना वो अच्छी साड़ियाँ खरीदती है, ना वो अपने लिए कुछ अच्छा खाना खाती है। रेस्टोरेंट भी जाना हो तो कहती है नहीं यहाँ मत जाओ। उसका सारा फोकस खुद के लिए नहीं है, परिवार के लिए है। पूरा जीवन उस परिवार को डेडिकेट करती है। ये आज अगर भारत का सिविलाइजेशन और भारत का जो कल्चर है, भारत की जो मूल वैल्यूज हैं, उसके बारे में बोलने वाले, बात करने वाले, फंक्शन करने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर उनको प्रैक्टिस करने वाले जो हैं वो आपको इंडिया के छोटे शहरों में मिडिल क्लास फैमिलीज में मिलेंगे। और वही त्याग, वही सैक्रिफाइस, वही तपस्या अगर आप भारत को मां माने तो भारत ने भी किया है। क्योंकि बिना उस त्याग और तपस्या के हजारों साल लोगों का इन्वेजन, लूटिंग, रेपिंग, ये सहन करने की शक्ति जो पूरी 5000 साल बाद भी हमारा सिविलाइजेशन जिंदा है। सारे सिविलाइजेशन खत्म हो गए। हमारे ये परिवार की जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो वैल्यूज हैं, वो आज भी जिंदा है हमारी माओ के कारण। तो मैंने ये समझा कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो भारत है, ये मेरी माँ है, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गिव इट बैक टू हर। दैट्स ऑल। तो हम अपने लिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरी कोई नीड्स ही नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसी लेगेसी पीछे छोड़ के जाऊं, कम से कम औरों के नहीं तो मेरे बच्चे, तो जिसके कारण दे फील प्राउड ऑफ
दिस भारत विच आई कॉल माई मदर, और वही मैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहीं से वो शक्ति आती है, वहीं से वो फियरलेसनेस आती है, वहीं से वो पैशन आता है। तो जैसे कई आपने लोग देखा होगा कि अपना काम आम छोड़ के अपनी माँ की सेवा करने चले जाते हैं, तो समझिए मैं भी वही कर रहा हूँ। वेलकम विवेक जी, वेलकम पल्लवी जी, वेलकम विवेक जी, वेलकम पल्लवी जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ह्यूज डिजर्व सक्सेस। तो आपको बहुत सक्सेस मिली। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कल ही, और आप बता रहे थे कि एक तरह से हिस्टोरिक काइंड ऑफ चीज़ें हुई हैं इस मूवी के साथ। मंडे की कलेक्शन संडे से ज़्यादा है। अगर हम बॉलीवुड के कंटेक्स्ट में समझे तो मंडे ट्यूसडे ऑर्गेनिक सक्सेस हुई, वर्ड ऑफ माउथ का कोई पब्लिसिटी नहीं थी, लेकिन एक एक करके और ये ह्यूज सक्सेस बनी मूवी। बहुत प्यार मिला, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जैसे आपने अभी कवर किया शुरू में, बहुत लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। देयर इज़ लॉट ऑफ हेट्रेड, लॉट ऑफ डिसलाइक। विशाल डडलानी का आपने एग्जांपल दिया। ऐसे जाने कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रॉल्स हैं, आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि इतनी सारी हेट्रेड ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ पे इतना प्यार है वहाँ पे इतनी हेट्रेड भी है। तो उसको, एंड आई नो यू पीपल आर ऑन द मिशन। आपने अर्बन एक्सेल्स को एक्सपोज किया, शास्त्री जी पे मूवी बनाई, अब ये कश्मीर फाइल्स इज एनीवेज ए काइंड ऑफ हिस्टोरिक काइंड ऑफ थिंग। तो ये नेगेटिव एनर्जी को आप इस मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी जो है उसको चैनलाइज कैसे करते हैं पॉजिटिव? और क्योंकि पल्लवी जी प्रोड्यूसर हैं तो इनसे कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि आई एम श्योर यू आर पीपल आर ऑन द मिशन, कुछ ना कुछ बढ़िया निकल के आने वाला है जल्दी। देखिए, नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक ही चीज़ मैं लिखता हूँ रोज़ सुबह। अभी यहाँ बिजी हूँ, पर आप देखें मैं ट्विटर में रोज़ एक क्रिएटिव कॉन्शियसनेस पे लिखता हूँ अपने ओरिजिनल थॉट्स। यू कैन सी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और वो मेरा ऐसा विश्वास है कि लाइफ में अगर आप एक पर्पस ढूंढ लें, आफ्टर ऑल हम क्यों हैं, क्या कारण है कि ईश्वर ने हमको अलग फीचर्स दिए हैं, अलग आवाज़ दी है, अलग थंबप्रिंट दिया है, जो कि हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है। इसी तरह से हमारा एक यूनिक प्रोग्रामिंग है, हमारा एक यूनिक पर्पस है लाइफ में। उसको ढूंढने में बहुत साल भी लग सकते हैं, कम साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करें तो वो मिलेगा भी नहीं। तो अगर हम अपना पर्पस ढूंढ लें लाइफ का, तो उसके बाद फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास भटकती भी नहीं है। फिर जो कुछ भी आप करेंगे वो सब कुछ पॉजिटिव ही होता जाएगा आपकी लाइफ में। तो दैट्स व्हाट आई डू। मेरा एक पर्पस है, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। अगली हमारी क्या फिल्म है उसके बारे में पल्लवी विल टेल यू। मैं इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देती हूँ। नेगेटिव एनर्जी से निपटने का एक मैंने बहुत आसान तरीका मेरे पास है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तो मैं जब मिलती हूँ आप जैसे लोगों को तो मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है कि नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास भटकती ही नहीं कभी। सो एनीवे, आपने अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। हम लोग अभी 2 फिल्में ऑन फ्लोर हैं हमारी। एक का रिसर्च तो कोविड के ज़माने से हमने, जब से पैंडमिक शुरू हुआ हम लोग घर पे बैठे थे, तो हमने एक फ़िल्म का रिसर्च शुरू किया जो फिल्म 2024 में आएगी। लेकिन एक फ़िल्म जो हम इस वर्ष के अंत तक हम लोग जिसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं, वो बेस्ड है कुछ ऐसे महिलाओं पर, और कुछ एक पुरुष भी, लेकिन अधिकतर महिलाएं, जिन्होंने बहुत संघर्षों के साथ, जब वो या तो खुद प्रेग्नेंट थी या तो उनके घर की कुछ समस्याएं थी या घर में किसी की डेथ हुई थी, जिस तरह से औरतें जनरली मल्टीटास्क करती हैं इन स्पाइट ऑफ मोस्ट एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए कुछ महिला साइंटिस्ट्स ने और कुछ एक पुरुषों ने मिलकर एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया कि जिससे 130 करोड़ लोगों की जानें उन्होंने बचाई हैं। तो इस विषय पर हम फिल्म बना रहे हैं। जो कोवैक्सीन बनी थी इंडिया में, उसको बनाने वाली जो टीम है साइंटिस्ट्स की, उनका एक बहुत ही अद्भुत कहानी है उनकी। बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, मेडिकल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते साइंटिस्ट्स के लिए, लेकिन किस तरह से उन्होंने, बिल्कुल एयर कंडीशनर्स अवेलेबल नहीं थे उस वक्त, गर्मी में बैठ के किस तरह से उन्होंने वो मीटिंग्स कंडक्ट की हैं। रिसर्च करने के लिए उनके पास लैब में वो
लैब मंकीज नहीं थे, लैब ही नहीं थी पहले तो, फिर वो क्रिएट की गई लैब, फिर वो बंदर जिनके ऊपर करना था रिसर्च वो अवेलेबल नहीं थे। ऐसी बहुत, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। तो वी आर रोलिंग आउट दैट फिल्म वेरी सून, टाइटल इज येट टू बी डिसाइडेड। और जो पैंडेमिक के वक्त जो हमने जिसका रिसर्च शुरू किया था, जिसका रिसर्च अभी भी ऑन है, अब 2024 में वी होप टू रिलीज दैट फिल्म। दैट इज़ द लास्ट ऑफ आर ट्रिलॉजी। जो पहली ताशकंद फाइल्स थी, दूसरी कश्मीर फाइल्स, और ये तीसरी जो आएगी वो है द दिल्ली फाइल्स। Namaste Vivek ji, Namaste Pallavi ji. This is just a question about the movie. Okay, so the movie, before making the movie, so you went and met all the people, started collecting the story, okay, and you started narrating the story, okay. And in the movie, so there are multi-dimensions. So you have shown politics, you have shown education, and you have also shown the media, and you've also shown the religious activities, okay. So you were listening to the story and you narrated the story and you left it to us that what went wrong, who could be found guilty. Somewhere in your mind, okay, when listening to these stories, okay, you might have thought, agar government ne kuch kiya hoga, for example, okay, it could be a local government or a central, okay, or you could have thought a public service could have done something, okay. I know all of these have played the role in this genocide. If you were to give a judgment on who could be that one thing, okay, is it the government or is it the religious activity? Who would be that one thing, okay? Would you stand and say, "Isse galti hua"? I know that everyone played a role in it, okay, but if you had to say that this is one thing, if they would have done it right, probably rather than having this big genocide, probably it could have reduced a bit. You know what I mean? Yeah. So who do you think, sir? I know you can say, yeah, everybody played a role, but one community where you can think about it, government, or is it media, or is it religious, or is it education system? Me, I am also answerable for this. If we say, see, there's a problem. The problem in the modern world is that democracy, we believe that हम भूल जाते हैं इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जो बाय द पीपल भी तो है। डेमोक्रेसी सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ अस, नॉट डिस्पाइट अस, नॉट इन स्पाइट ऑफ अस। और हम एक हिंदुस्तान में खास तौर पे आदत पड़ गई, कुछ भी है तो गवर्नमेंट को पकड़ो, गवर्नमेंट को पकड़ो, हर चीज़ हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं और खुद खामोश रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, आपको कश्मीर का जेनोसाइड समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने रॉयल, आई डोंट नो फुल नेम, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी, कहाँ, नमस्कार जी, ऐसा मुझे सुनने में आया, मुझे डिटेल्स नहीं पता है, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है, कि स्क्रीनिंग करने वाले थे। और आज ही मुझे किसी ने लेटर्स भेजे हैं, इस्लामिक सोसाइटी या समथिंग, उन्होंने लेटर लिखा उनको और उसके बाद वो कैंसिल हो गया। हमने कहा ठीक है, ये तो लाइफ का पार्ट है, हो गया। मैं कैम्ब्रिज में गया, वहाँ पे इंडियन प्रोफेसर, हिंदू प्रोफेसर, उनको हिंदू लड़कों ने जाके बोला कि ये जो डॉक्यूमेंट्री आपने अभी देखी है ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप नहीं दिखा सकते, ये जो इंटरव्यूज़ हैं लोगों के ये नहीं दिखा सकते हैं। तो वो प्रोफेसर ने अपने मन से एडिट कर दी, सेंसर बिना हमें बताए हुए। और जैसे आपने कहा भी हम ये चलाने वाले हैं, और वो लास्ट के सिर्फ 4-5 मिनट जो फिल्म कैसे रिलीज हुई, क्या सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्री बची थी, बाकी सब उनने अपने मन से सेंसर कर दिया। और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हीं ने बोला अरे रे मत करो मत करो, प्रोफेसर की नौकरी चली जाएगी। हमने सारी दुनिया में घूम के इतने इंटरव्यूज लिए, अपने नाम पे फतवे लिए, मेरे साथ 5 गन लेके सीआरपीएफ के जवान चलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर को नौकरी नहीं चली जाएगी, मतलब उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए बोलना नहीं। ऑक्सफोर्ड में मेरा जब प्रोग्राम कैंसिल किया, और वो ऑक्सफोर्ड यूनियन ने इनवाइट किया था मुझे, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट बॉडी ने किया, तो ऑक्सफोर्ड यूनियन ने ऑन ईमेल, और एक दिन पहले 48 घंटे पहले मंडे को था, संडे को ईमेल आया कि सॉरी हमसे गलती हो गई, वी मेड अ डबल बुकिंग।
और जबकि ऐसा नहीं है, कोई डबल बुकिंग नहीं थी। अच्छा, डबल बुकिंग हो गई तो आपसे बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। बिना हमसे बोले पहले उन्होंने डेट अपने मन से 1 जुलाई कर दी। क्यों 1 जुलाई कर दी? क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट 30 जून का है। क्यों 1 जुलाई कर दी? क्योंकि 1 जुलाई को कोई स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे वहां पे। करेक्ट? लेकिन बाकी सब ने मुझसे बोला नहीं नहीं कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म है। ये मेरी फिल्म का डायलॉग है, मैं ताशकंद फाइल में मैंने बोला। तो अब मुझे उल्टा सवाल आपसे पूछता हूं, छोटी सी बात पूछता हूं। कल मेरा सलमान खुर्शीद साहब के साथ इंटरव्यू था। समझिए अगर राहुल गांधी का आप ही के इंस्टीट्यूट में डॉक्टर साहब कोई इवेंट होता और वो हिंदू सोसाइटीज ने कैंसिल करा दिया होता, तो बताइए प्रलय नहीं आ गई होती दुनिया में? The world would have been turned upside down. This is the problem. क्योंकि हमें बचपन से एक अच्छी वैल्यू सिखाई गई है, और बहुत अच्छी वैल्यू, मैं सच बताऊं इतनी ज्यादा अच्छी वैल्यू है। हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं? अरे वो गुंडे लोग हैं, उनके मुंह मत लगो, अपना काम करो। हमें बचपन से सिखाया गया छोड़ो ना। अरे लड़कियां जब निकलती हैं, मैं कानपुर को लड़कियां निकलती हैं, कोई लड़का सीटी बजा देता तो माँ यही बोलती थी अरे रहने दो ना, मत पढ़ो इस चक्कर में, हमें पढ़ लिख के कुछ बनना है। हमारा पूरा फोकस एजुकेशन, एजुकेशन जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ उससे आज की तारीख में काम नहीं चलेगा। और ये जो पिछले 800 साल में नॉन वायलेंस, और हमारे यहां पूरी तरह से चाणक्य ने बोला है, गीता में बोला गया है। अरे गीता को तो मानो। जब धर्म संकट हो तो ना तो सिर्फ शास्त्र से काम चलता है, ना सिर्फ शस्त्र से चलता है। शास्त्र और शस्त्र को जोड़ के ही धर्म संकट से बाहर निकला जा सकता है। और शस्त्र का मतलब बंदूक उठाना नहीं है। जो मैं कर रहा हूं ये शस्त्र है। मैं अपनी फिल्म को एक शस्त्र की तरह यूज कर रहा हूं। आई एम यूजिंग माई फिल्म एज अ वेपन टू फाइट दिस नैरेटिव। तो इसलिए, और मैं कोई दुखी नहीं हूं, मैं शिकायत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दर्पण की तरह, लाइक अ मिरर, आई एम शोइंग यू कि अगर इनके यहां मेरी जगह, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर विशाल भारद्वाज जी आए होते जिनने हैदर बनाई है, जिसमें टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया है, उनका अगर कुछ लोग अगर कैंसिल करा देते तो आप मुझे बताइए आज क्या हो रहा होता? आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही होती, नारे लग रहे होते, स्कॉटिश पार्लियामेंट में चले गए होते, बिल पास हो गया होता, दुनिया भर का मीडिया उसे कवर कर रहा होता, बीबीसी में ये न्यूज चल रही होती, और इंडिया में लोग कह रहे होते देखो मोदी का फैशिज्म अब स्कॉटलैंड भी पहुंच गया। पर फैशिज्म क्या है? ये है फैशिज्म जो हो रहा है हमारे साथ। ऑक्सफोर्ड में जो कैंसिल किया वो है फैशिज्म। और ऑक्सफोर्ड यूनियन वो जगह है जहां पे बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने आके स्पीच दी है। मुशर्रफ ने दी है, इंदिरा गांधी ने दी है। और हमारे टूर का नाम है ह्यूमैनिटी टूर। और आप देखिए मैं ह्यूमैनिटी की ही बात करता हूं। दिस इज द प्रॉब्लम। It's not more of a question. In fact, it's one of the things which I'm taking out from today is from that movie, means from the clip which I saw yesterday and today, is one of the things about narrative is one of the things which was said, and probably Meenakshi also corroborated that, saying that जब अपने ही नहीं सुनते तो बाहर वालों की क्या शिकायत करें. So I think we have got into the trap. What you said is that means trying to fight the enemy and picking up the wrong things from enemy. I think my view, and I would like your view on that one, is that supporting Hinduism, following Hinduism, and propagating the Hinduism, the Hindu principle, we should never let that to be considered as Islamophobic or against any other religion. Because anything which is coming out from India, and it's very unfortunate that anything which is coming out from India and Indian government's policy is branded as Hindu policy. And despite all these things, the Indian government, which is the Indian consulate, does not really put their foot behind and support, like just in case your Oxford things was cancelled. I think it's also a case of our Indian government to take up. Means we will definitely take up, but it should be given that kind of priority. So it's very heartening to hear out from you. And yes, we will always be there to support. Now it's the time for us to
come out and be very, very proud and assertive about we are Hindus and we are proud of it. So recently, many people don't know, we've been fighting. Scottish government, not the UK government, has passed a bill which is called hate crime legislation now. It was a bill where if you say something on Twitter or Facebook, you will be branded that you're stirring up hatred. And the definition is so vague and grey. So I'm part of a free speech union advisory board. So we have been fighting very long against this bill. So the bill has passed in the parliament, but many police and lawyers are saying, how are we going to implement it? Are we going to check everyone's tweet, what they say in a public platform? So it would be very difficult to implement this law. So that's why it is still on hold, not been implemented. But Scotland is, I don't want to say, but it's a very leftist country in the whole of Europe, I would say. And that's why we're so scared. And I wanted this event to happen because then people will get some strength कि हमारी भी voice matter करता है। नमस्ते, आप लोगों का पुनः स्वागत है स्कॉटलैंड में। मेरा नाम अभय। मैं सबसे पहले ये शुरू में कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है। हम लोग अपने आप के दुश्मन हैं, है ना। दूसरी कि आप हैट्स ऑफ टू यू पल्लवी जी एंड टीम कि आपने इतना करज दिखाया, वर्ल्ड के सामने ये मूवी लेके आया। आई वुडंट से इट्स अ मूवी, आई वुड लाइक टू से इट्स अ ट्रुथ। और ये आपकी जीत नहीं, हम सब की जीत है कि ये ट्रुथ जो है, ये मूवी इतना सक्सेसफुल हुआ। मैं एक रिक्वेस्ट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। किसी भी चीज़ का प्रो एंड कॉन्स होता है ना। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री, मूवी या ट्रुथ बाहर लाने से सोसाइटी में कहीं कि किसी खास वर्ग या किसी लोगों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता होगा या हो रहा है या होगा? देखिए, जो नेगेटिव लोग हैं उन पे तो कुछ भी, अगर गुड मॉर्निंग भी सुबह बोल दो तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मैं रोज़ सुबह लिखता हूँ गुड मॉर्निंग और कोई अच्छी बात लिखता हूँ तो कई लोग जो हैं वो उस पर भी गाली दे देते हैं। उनका तो कुछ नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस फिल्म से जिस तरह से हम लोग यूनाइट हुए हैं, एटलीस्ट जो वॉइसलेसनेस थी वो ख़त्म हुई, वो एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, दुनिया में ये इस्टेब्लिश हो गया कि हाँ, हिंदू भी विक्टिम हो सकता है। अभी तक ये टोटल डिनायल था कि जो हिंदू है वो विक्टिम हो ही नहीं सकता, और हम विक्टिम हैं। हम कोई सिर्फ कश्मीर के विक्टिम नहीं हैं, 1000 साल के विक्टिम हैं हम लोग। 1000 साल का विक्टिमहुड है हमारा। 1000 साल तक माइनॉरिटीज़ हम लोगों पे रूल करती रही। तो बोलना ये कि इट्स अ मेजॉरिटेरियन कंट्री है तो बिल्कुल झूठ है। पहले हमारे 800 साल जो हैं इस्लामिक लोग रूल करते रहे हमारे ऊपर, उसके बाद क्रिश्चियंस रूल करते रहे। वो तो हमारी ताकत है, हमारी इनहेरेंट स्पिरिचुअल ताकत है, हमारे फैमिली सिस्टम की ताकत है कि हम लोग पूरी तरह से इस्लामिक या क्रिश्चियन कंट्री नहीं बने। वरना जहाँ जहाँ भी आप देखिए दुनिया में इस्लामिक इन्वेडर्स गए, वो सारी कंट्री इस्लामिक हो गई। इंडोनेशिया में आज भी हिंदू कल्चर मानते हैं लेकिन कंट्री इस्लामिक है। जहां जहां पे कॉलोनाइजर्स गए, वो हर एक कंट्री, आप रिसर्च करिए आज जाके, वो हर कंट्री क्रिश्चियन कंट्री हो गई। अफ्रीकन कितनी सारी कंट्रीज जो क्रिश्चियन हो गई, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब क्रिश्चियन कंट्रीज हो गई जहां जहां पे उन लोगों ने इन्वेट किया। लेकिन हम आज़ादी के बाद हिंदू कंट्री ही रहे, और चूंकि हमारा हिंदू कंट्री रह गए तो हमारी इतनी बड़ी ताकत हो गई। वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फेक सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाया गया। भाई, जो आज़ाद पंछी है, जो बंदी नहीं है पिंजरे के अंदर, उसको क्यों आज़ादी के गीत सिखाना? तो जो सेकुलर बाय नेचर हैं, जो लोग इंक्लूसिव हैं, प्लूरल हैं, उन लोगों को काहे को सेकुलरिज्म घुसाना? जैसे इस्लामोफोबिया एक पॉलिटिकल वेपन है, ऐसे सेकुलरिज्म भी एक पॉलिटिकल वेपन है। और ये वेस्ट की दाद देनी होगी। दे आर सो शार्प इन दिस। ये हमेशा नए नए ऐसे स्लोगन्स ले आते हैं जस्ट टू शट यू अप। सेकुलरिज्म आपको पता है क्या चीज़ है? सेकुलरिज्म जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे धर्मों को माने। सेकुलरिज्म की जो इजाद है वो तो तब हुई थी व्हेन चर्च स्टार्टेड एंटरिंग पेगन कल्चर्स। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये था उस वक्त कि नहीं, आप चर्च को भी इंक्लूड करो, दैट वाज सेकुलरिज्म। तो जो भी पेगन कल्चर चर्च अलाउ कर देता था, क्रिश्चियन चर्च, उसको सेकुलर स्टेट बोलने लगे। उसका डायरेक्ट क्रिश्चियनिटी से रिलेशन है और किसी और चीज से रिलेशन नहीं है।
तो सेकुलरिज्म की तरह इस्लामोफोबिया ये सब हम लोग ये अभी वेपन्स लेके आए हैं। तो मेरा ये मानना है, एंड चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, तो दो चीजें आप लोगों को समझनी है। नंबर वन, वी शुड नॉट बिकम रिएक्शनरी। हमको ये नहीं करना है कि वो लोग ऐसा करते हैं इसलिए हमें भी ऐसा करना है, तो हम तो वैसे ही बन जाएंगे फिर। तो जिस चीज से आप नफरत करते हैं, जिस चीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आप खुद वैसे बन जाएंगे। अब आप कहेंगे फिर उनसे लड़ा कैसे जाए? तो लड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर एक लाइन खींची है तो आप उससे भी बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। और ये बड़ी लाइन कैसे खींचेंगे? बड़ी लाइन कैसे खींचेंगे? बड़ी लाइन ऐसे खींचेंगे कि यू गो रिसर्च, talk to your parents, talk to your people, figure out what is the greatness of our civilization, and fill this entire social media universe with the greatness of our culture and our civilization. मैंने जैसे एक लड़का भी वो चैंपियन, चेस चैंपियन बनाया, आपने देखा होगा, 2 बार उसने वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर को हराया। अब वो लगाता है शैविज्म वाला ऐसा तिलक पूरा लगाता है, उसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं गया और मैंने उसकी बहुत तारीफ करी वहाँ पे जाके। उसने मुझे मैसेज भेजा पर्सनल, उसने थैंक यू बोला, क्योंकि उसको, आपको पता है कितना उसको बेचारे को ह्यूमिलिएट कर रहे थे कि ये क्या लगा के वो कर रहा है। और इंडिया टुडे ने, आप देखिए, इंडिया टुडे ने जब उसकी फोटो छापी तो उन लोगों ने उसको फोटोशॉप में डिलीट कर दिया, उसका माथे कर दिया। डू यू नो दैट? नाउ यू नो दैट। आप जाके पढ़ लीजिए, अभी आज रिसर्च करिएगा। हाँ, और मुझसे अगर गलती हो रही है एनडीटीवी, इंडिया टुडे पर मेरा 99% मेरा विश्वास है इंडिया टुडे था। इंडिया टुडे, राइट, दे डिलीटेड इट इन फोटोशॉप। और जब उनसे पूछा गया क्यों, तो दे सेड वी आर सेक्युलर। What is that got to do with chess? राइट, लेकिन हाँ, सलमान खान इफ्तार की पार्टी में जाते हैं वहां, तो वो उसमें कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, कोई चीज सेक्युलरिज्म नहीं है, लेकिन ये लगाना सेक्युलरिज्म है, राइट। तो मैंने उसका किया। और आप मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो करिए, आपको समझ में आएगा। मैं एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपने कल्चर की ग्रेटनेस की बात करता हूं। और अगर आप देखें, वो जो कृष्णा पंडित है उस फिल्म का, जब वो लास्ट में स्पीच देता है तो वो अपने कल्चर की ग्रेटनेस की बात करता है। वो ये नहीं कहता ये खराब है या वो खराब है। आप जब, हमारे पास तो इतनी ग्रेटनेस है, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं आप छोटी सी चीज निकाल लीजिए, कुछ नहीं समझ में आए तो बचपन में जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस शहर में खेलते कूद के बड़े हुए हो, वहाँ के तो पेड़, कुछ चीज़ें याद होंगी, उसी के बारे में लिख लो, अपने शहर के बारे में लिख लो। वो भी नहीं समझ में आए तो अपने माँ बाप के बारे में लिख दो सोशल मीडिया में कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ऐसे मेरे को खाना खिलाती थी, ये करती थी, वो करती थी। ये जब हम बात लिखना शुरू करते हैं तब सारी दुनिया को समझ में आता है कि हम कंटेंट कॉन्फिडेंट लोग हैं और हमारा कल्चर, सिविलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो सोशल मीडिया में हम गाली गलौज दूसरों को गाली देते हैं, वो भी करना जरूरी है, कुछ लोगों को करने दीजिए, लेकिन वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ आवर मदरलैंड, ऑफ आवर मदर, ऑफ आवर पेरेंट्स, rather than attacking others.